ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਾ ਕਨੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਬਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕਠਿਨ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਲਿਖਾਰੀ, ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ।
उन्होंने संसार में हर एक चीज़ संसार के लोगों को विखा दी। वो कुछ भी अपने नाल नहीं लैके गए, सारा का सारा कह लगे संसार में अपना सब कुछ दे के गए नहीं। पर वो लिखारी कहता एक चीज़ ऐसी है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने लुको के रखी। हालांकि वो चीज़ लुको के रखनी औखी है, बाकी चीज़ां लुका लेनियां सौखियां ने। वो अगे सामने बैठा दूजा कहता भी ऐसी किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने छुपा के रखी। ना उन्हें पुत्र छुपोए, ना बाप, ना माँ, ना भैन, ना भरा, ना जमीन, ना जायदाद, ना सिख, कोई भी चीज़ तो छुपाई नहीं। ऐसी किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह संसार दे विच छुपा के लैके गए ने, बाकी हर एक चीज़ जिहड़ी है वो सामने संसार दे रखी है। तो उस लिखारी ने आखिया कह लगा गुरु गोबिंद सिंह ने दुनिया के अंदर हर एक चीज़ प्रगट कर दी, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखी। पर दुनिया में एक चीज़ छुपानी सब तो औखी है, वो गुरु गोबिंद सिंह ने छुपा के रखी। वो सी अखां दे अथरू, अखां दे हंझू। थोड़ी जी सट वजे तो अखां विचों पानी आउण लग जाता है, थोड़ी जी तकलीफ होवे सब तो पहला अखां विचों पानी आउंदा है। माड़ी जी प्रॉब्लम कोई जीवन में आ जाए बंदा रोई जाता है, थोड़ी जी मुश्किल आवे ए गुरु गोबिंद सिंह धन है, पिता का सीस वेखिया तू रोया नहीं, आनंदपुर उजड़ गया तू रोया नहीं, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया तां भी नहीं रोया, अज चमकौर दी गड़ी विच पुत्र शहीद हो गए तां भी तेरी अखां विचों एक अथरू नहीं आया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। बड़े प्यारे बोल अल्लाह यार खां जोगी ने लिखे ने। वो कहता है गुरु गोबिंद सिंह जदों मैं दुनिया के इतिहास विच वेखदा ना, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। इब्राहिम जिहड़ा ना उनका पुत्र होया इस्माइल। इस्लामी दुनिया दे विच इनू बड़ा उच्चा दर्जा है, रब दा इनू जिहड़ा है बिल्कुल दूत ही मन्निया जाता है। इब्राहिम नूं इस्लाम मत दुनिया विच इनका पुत्र होया इस्माइल। कहते ने इब्राहिम नूं हुक्म होया भी तू अपने पुत्र नूं खंजर दे नाल कतल करना है। हुण उहदे पुत्र इस्माइल नूं सामने लिया के खड़ा कर दिता। इधरों इब्राहिम खलोता है, हाथ विच खंजर फड़ा दिता भी तू इहदा कतल करना, इहनूं खत्म करना है। हुण जदों हाथ विच खंजर फड़िया है ना, तो उस समय जिहड़ा सामने इब्राहिम है वो रोन लग पिया। हुण जदों रोन लग गया कहता भी मेरे हाथ ना पिछे बन दिओ। उन्हें पूछा भी हाथ क्यों पिछे बनने ने? कहता हाथ इस करके पीछे बन दिओ जदों मेरा बाप खंजर मारेगा किते मैनू दर्द होया तो मैं हाथ नाल अपने बाप का हाथ फड़ न लवां, मेरे हाथ पिछे बन दिओ। उन्हें हाथ पिछे बन दिते। फिर जदों खंजर लैके अगे तुरन लग्या इब्राहिम ने आखिया भलिओ मेरिया अखां ते पट्टियां बन दिओ, मेरे को वेख्या नहीं जाना मेरे पुत्र का वगदा होया खून, इस करके मेरिया अखां ते पट्टी बन दिओ। इतिहास गवाए इब्राहिम दियां अखां ते पट्टी बन दी गई। तो जदों उन्हें खंजर नाल वार किया तो वह ज़ारो ज़ार रो पिया। थोड़ी देर बाद अखां तो पट्टी खोल दी। सामने उनका इब्राहिम पुत्र नहीं सी इब्राहिम का इस्माइल, वो इस तरह बुत एक खड़ा किया सी। कह लगे इतिहास दे विच ये गल प्रतख ज़ाहिर हो गई कि जे वाकया ही किते अखां ते पट्टी ना बनी हुंदी ते इब्राहिम तो अपना पुत्र मारिया नहीं सी जाना, खत्म नहीं सी किया जाना। भाव अखां दे सामने अपने पुत्र नूं तड़फदे हुए वेख नहीं सी सकदा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी चमकौर की गढ़ी विच किसी मजबूरी वस अपने पुत्र नूं बुला के नहीं भेजते, बल्कि पुत्र आप आउंदा है तो कहता है पिता जी मैनू मैदाने जंग विच तोरो। अखां सामने पुत्र शहीद हुंदा है। जे तुसी दुनिया का इतिहास पढ़ो तो याद रखना श्रवण कुमार
अपने माँ बाप को दुनिया की तीर्थ यात्रा ते लैके गया सी। ते दशरथ जी ने तीर मारिया तो श्रवण कुमार की मौत हो गई। माँ बाप अन्ने सन तड़फते हुए कह लगे जिवें असीं पुत्र के वियोग नाल मरन लगे, एक दिन तेरी भी हालत होगी। इतिहास कहता है भी जदों दशरथ जी इस तरह उच्ची थां ते खलोते ने, रामचंद्र नूं सिर्फ 14 साल का बनवास होया है। ये पता है भी 14 साल बाद वापस आ जाना है, पर जिन्ना चिर अखां दे सामने रहे रामचंद्र जी ते दशरथ जी ठीक रहे, अखां तो ओले थले डिग के ते उन्हां दी जिंद खत्म हो गई। पुत्र का विछोड़ा सहा नहीं गया, इब्राहिम तो पुत्र का विछोड़ा सहा नहीं गया। महात्मा बुद्ध जदों घरों रात को तुरन लगे हैं, राजमहल विचों अपने पुत्र राहुल नूं वेखिया, मत्था नहीं चुमिया, क्यों ममता रोक लैंदी। जे पुत्र उठ जाता तो उन्हें महात्मा बुद्ध नूं जान नहीं सी देना, वो सुते पे रात बच्चों नूं छड्ड के चला गया। दुनिया दे अंदर ममता एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी माँ बाप तो बच्चों नूं दूर नहीं जान देंदी। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंदरों किन्ने निर्मोह ने, अंदर उन्हां दे किन्नी वड्डी जिहड़ी है वो मोह वाली जी आपां कहने आ भी अवस्था, जिन्हों तोड़ के ते कलगीधर पातशाह सच्ची प्रीत पा के मालक नाल जुड़े हुए सन। पुत्र भी सामने शहीद हो गए, सिख भी हो गए, पर परवाह नहीं की। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। अगे वो कहता है, साबर कोई कम ऐसा रसूलों में है आया, कोई ऐसा सबर दा दानी दुनिया विच कोई विरला गुरु गोबिंद सिंह वर्गा आया है। कटाए 4 पिसर एक आंसू ना गिराया, 4 पुत्र जेड़े ने वो खत्म हो गए, पर एक अथरू नहीं आउण दिता। गुरु गोबिंद सिंह ने रुतबा ऋषियों का बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह ने ऋषियों का रुतबा उच्चा कर दिता सी। डडक में थे राम तो सीता थी बगल में। जदों जंगल दे विच रामचंद्र जी सन ते नाल हौसला देन कौन सी? सीता जी। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह नाल कौन सी? कोई भी नहीं सी। कह लगे रामचंद्र जी दे नाल तां जंगल विच सीता जी सन, उन्होंने हौसला देंदे सन भी तुसीं घबराओ ना, मैं तुहाडे नाल आ। ते कोई नाल जीवन साथन होवे ते हौसला बड़ा हुंदा है, बंदा घबराउंदा नहीं। अगे वो कह लगे लक्ष्मण सा बिरादर पे तस्गीर जिगर था, लक्ष्मण वर्गा भरा नाल सी, परवाह नहीं सी कोई रामचंद्र जी नूं, उन्होंने हौसला देने वाला। तो गुरु गोबिंद सिंह कल्ले सन मैदान जंग कच्ची गढ़ी विच। कह लगे कोई हौसला देने वाला नहीं सी, उत्थे नाल सीता जी ने, नाल कह लगे उत्थे लक्ष्मण जी ने। फिर अगे वो बड़ा प्यारा लिखते ने, कह लगे भी जेड़ा जंगल सी ना, सीता सी पति व्रता, बन राम को घर था। जंगल इस तरह लगता सी जिवें रामचंद्र जी का घर है, क्योंकि नाल पत्नी ते नाल भरा है, परिवार नाल है। जंगल भी घर वर्गा ही लगता सी। पर कह लगे हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जीओ, तेरा मैं की कह लगे इस दुनिया दे अंदर सानी कहाँ भाव इत्थे कृष्ण जी वर्गे हुए ने। कटा दिए शाम ने शिश गीता को सुनाकर। कह लगे जे कृष्ण जी की गल करा, उन्हें गीता सुना के महाभारत में पता नहीं किन्नियां दे पुत्र मरवा देते सन। कटा दिए शिश शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गुरु गोबिंद ने औलाद को कटाकर। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी औलाद कटा के अखां दे सामने किसी दे पुत नहीं मरवाए, बल्कि चमकौर दी गढ़ी विच रूह फूक दी। जदों अपने पुत्रां नूं कह लगे सामने जेरा जेरा होंदे वेखिया, मां नाल कहा सी मैं शहीद पुत्रां दा बाप भी हाँ। ऐसे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी। फिर जिंदगी के हालात ऐसे बने। अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं, आदा ने कभी तुझे संभलने ना दिया था। आदा कहते ने दुश्मन, ऐ गुरु गोबिंद सिंह कभी तेन दुश्मन ने ना कह लगे संभलन दिता ही नहीं। पटने तो लैके ते नदेड़ की धरती तक दुश्मन हमेशा पिछे ही पिया रहे हैं। कभी भी चैन दे नाल
आराम से पहलू को बदलने ना दिया था। कभी वो दिन नहीं आया भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सोचिया होए भी अज तो चल किसी ने नहीं आना, अज तो थोड़ा चिर आराम कर लीए। हुंदा ही है ना, असी भी हफ्ते च काम कर लें, जिस दिन ऐतवार होंदा असीं भी उड़ीक करदे भी चलो अज घूमण जावांगे, अज आराम करांगे, अज कोई 5-7 घंटे होर सोवांगे, करदे ही है ना। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी, आराम से कभी पहलू को बदलने ना दिया था। अगे वो बड़ा प्यारा लिखता है, कहने लगे गुलशन को कभी फलने फूलने ना दिया था। दुश्मन इस तरह पिछे प्या रहा, उन्हें कभी इस बगीचे को फलन ही नहीं दिता। कभी इधरों हमला कर देंगे, कभी इधरों हमला, कभी पहाड़ी कर देने हमला, कभी मुगल सल्तनत हमला कर दी है। इस गुलशन को, इस बगीचे को उजाड़न ते ही रहे ने। अगे वो कहने लगा काटा दिले पर निकलने ना दिया था। तेरे दिल विच कहने लगे ऐसा कंडा मारिया उन्होंने, जालमां ने, उन्होंने निकलन नहीं दिता। सच जानियो जदों कंडा वजिया होवे ते वो बड़ा दर्द करता है। पर हे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जीओ, तेरे सीने विच वो कंडा चुभदा रहा, पर तू कदी परवाह नहीं की। जिस रण में लड़ा तू, बेसरो सहारा लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा पड़ा तू। जदों भी समा आया तेरे कोल कोई सहारा नहीं सी, तू सदा बेसहारा रहा। हुण पहाड़ी राजियां नाल ते जिहड़ी दूजी सरकार सी औरंगजेब दी हुकूमत, वो सहारा देंदी सी आके, पर गुरु गोबिंद सिंह कल्ले ही हुंदे सन। वो कह लगे जिस रण में लड़ा तू, बेसरो सहारा लड़ा तू, पर कह लगे 100 सिंह लिए लाखों पे जा पड़ा तू। हमेशा थोड़े जे सिंह लए ते लखां ते जाके टुट के पै जाना, परवाह नहीं करते गुरु गोबिंद सिंह। इहो जिहा हौसला जिहड़ा है उन्हां दे शख्सियत जीवन विचों सानूं मिलदा है। सो गुरु प्यार वालिओ, इस चमकौर दी घड़ी विचों जदों कलगीधर पातशाह जी अपनी पोशाक पाई भाई संगत सिंह नूं ते नाल लिया भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, ये तीनों सिंह वख-वख दिशावां वल निकले ने ताकि दुश्मन नूं भुलेखा भी पै सके। पर महाराज ने एक गल आखी सी, मैं जावांगा पर मैं उच्ची ताड़ी मार के आवाज़ मार के जावांगा, हिंद दा पीर जा रहा है, जे किसी च जरूरत है तो रोक। सतगुरु सच्चे पातशाह जदों गड़ी विचों इस तरह थले निकले ना, एक नज़ारा बड़ा प्यारा जदों निकले ने ना। हुण वेखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कोल आनंद दी पुरी सी ते दुनिया दी हर एक सुख सहूलत सी। क्यों आपां बचन पढ़ने साचे साहिब आ क्या नाही घर तेरे, भी तेरे घर तां हर एक चीज़ है। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जदों निकलन लगे ना, तो अज वर्गे रस्ते थोड़ा होंदे सन, कच्चे रस्ते होंदे सन। हुण जदों लगे निकलन थले ते महाराज ने ना अपना जोड़ा ला दिता। ना घोड़ा कोले, ना पैरां विच जोड़ा कोले, ते ना ही पुत्रां दा जोड़ा कोले। जदों लगे तुरन महाराज ने जोड़ा ला दिता। भाई दया सिंह ने पूछया भी सतगुरु भी चलो ठीक है, घोड़ा नहीं, पुत्रां दा जोड़ा नहीं, पर घट्टो घट्ट पैरां विच जोड़ा ते पा लवो, क्योंकि रस्ते जिहड़े ने कच्चे हुंदे सन। कोई जीव जंत हो सकता है, सतगुरु कोई कंडा हो सकता है, पैर में चुभ जाएगा, पैर में जुत्ती पा लो। सतगुरु कह लगे नहीं दया सिंह, कह लगे इत्थे मेरे जानों वध प्यारे पे ने, हो सकता है किसी दा केस, किसी दा सिर नंगा होवे, किसी दे केस होण, किसी दा कंघा पिया होवे। कह लगे मैनू वो केस कंघा बड़ा प्यारा है, मेरी जुत्ती किते उस केसां उत्ते ना रखी जावे। अज आपां जदों केस वेखो, हुण ते पता नहीं किहो जिहा रुझान तुर पिया, हुण ते कहना पैंदा गुरु घरां विच भी भाई सिर ढक के रखो। घरां च जाईदा है प्रोग्राम करन, उत्थे भी सिर ढक के रखो। हालांकि ये गल कहण वाली नहीं, ये गल सानूं पता होनी चाहिए, समझण वाली है। ये कहण वाली गल नहीं, ये समझण वाली है कि गुरु पातशाह जी का अदब सत्कार असीं रखना है। गुरु पातशाह जी वेखो जदों लंघ रहे ने, उन्हां नूं किन्ना अदब है केसां दा, किन्ना प्यार है।
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਤੁਰਨ, ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਾਲ 3 ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ सजदा करो, बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। अगे वो आखदा है चमकौर, कह लगा चमक मेहर की चमकौर तेरे ज़र्रों में है, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए। जदों मैं आकाश वाल वेखदा वां, सितारे चमकदे ने, ऐ लगदा इत्थों अजीत ते जुझार उत्ते जाके बैठ के होण ते दुनिया नूं रोशन कर रहे ने। सो ऐसी महान शहादत नूं आपां सजदा नमन करदे हां, सीस झुकाउने हां, ते उन्हां दी कुर्बानी नूं सदा याद रखीए। सतगुर सच्चे पातशाह किरपा करन, सबना दा आया होया परवान होवे। विचारां करदे हां, बेअंत भुल्लां होईयां बख्श लैणीਆਂ। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।